creating packaging program in Java, or how to create a modular program in Java. The first, you open the NetBeans IDE, then after NetBeans IDE, go for File, just a minute. Just wait. Then File, then go to the New Project, File, New Project. Then when you are creating a new project window will open. Takes some time to open. Okay, then after this window is open, choose Java, then Java application. नेटबिन नो केते वर्जन तमे जो 8.0 जो भी वर्जन है यूज कर परियो बुझे ये जो वर्जन टा मोर अछि एक्चुअली तमे जदी यूज करू छ तले तुमको प्रोजेक्ट को टे हेल्प हो सर एटा के को वर्जन अछि सर मु करिनी नेटबिन यूज केबे हां 8.0 वर्जन डाउनलोड करूछ तो Java, then Java application, then go to next. Okay, Java application next. Then here you have to give your project name. एटे मो application name टेट देबे
सर ओराकल रो ना सर आपाची रो मान लिंक रू करबा पड़िबो ओराकिल ओके so here you have to give a project name. Package example. So when you give a name as package example, so in the lower part you found there is a two portion is present. One is your package name, means folder name. Another is your class name. The first part is your package name, second part is your class name. So I define here ମୁଁ ଏଇଟା ରିମୁଭ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ନେମ୍ ଦେବି ବା ଫୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଦେବି that is p1. So p1 is the package name dot class name is first. Okay, so package name is p1, class name is first. Then I go for finish. So automatically one project will created here. ଟିକେ ୱେଟ୍ କରାଯିବ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି କାଇଁ so in this package example if you extend the source package p1 is the folder name or package name. In this folder one class is created, so that class name is first. So here we have not written any program. It is my class, first class. Then in this class I have to write some program.
So here main method is present, so I remove it. Most okay, so remove all the part that is written here. तो आप जब फास्ट क्लास बनाओगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेन मेथड क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो ये क्लास के अंदर जो भी सारा चीज है उसको रिमूव कर देना है। तो आई रिमूव ऑल द पार्ट। नॉट रेस्पॉन्डिंग होगा। Just a minute, I am sharing another screen. It is better. Just give me 1 minute. Give me 1 minute, please.
Am I audible? Hello. Yes sir, you are audible. Just a minute. Okay. So now see that. So in the past class, I define here public void display function. So in the display function, I have to pass here system dot out dot println. This is first class. Then for creating another package, right click on the source package. ये यहाँ पर एक पैकेज हो गया. तो दूसरा पैकेज बनाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक ऑन द सोर्स पैकेज, न्यू, देन जावा पैकेज. तो यहाँ पर मैंने दूसरा पैकेज बनाया. तो यहाँ पर पैकेज का नाम मैं यहाँ पर दूंगा P2. So here I give the package name as P2, then finish. So my another package is created. तो इस पैकेज में मैं और एक क्लास बनाऊंगा. तो क्लास बनाने के लिए यहाँ पर P2 में मैं राइट क्लिक करूंगा दूसरा क्लास ऐड करने के लिए. तो राइट क्लिक ऑन द पैकेज नेम, न्यू, then choose here Java class. This one, Java class. So when you choose the Java class, give the class name as second. मैंने यहाँ पर क्लास का नाम दे दिया second, then finish. समझ में आया इतना तक? शुभम. हाँ सर, clear. Okay. Then, so I have created a class. Class name is second. Then here I define public void accept function. So two function I have defined. Public void accept function. In that function, I have to pass system dot out dot println. This is second class.
Okay, so here I define this is second class. Now public void. Okay. Next, I am creating another package. Right click new Java package. पैकेज नेम इज P3 और एक पैकेज बनाया P3। तो P3 में हम क्या करेंगे ना, ये दो मॉड्यूल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरा क्लास को यहाँ पर कॉल करूँगा। तो दूसरा क्लास को कॉल करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक न्यू देन जावा क्लास नेम इज थर्ड, देन फिनिश। और एक क्लास मैंने ऐड किया। तो इस क्लास में मैं जो दोनों क्लास बनाए हूँ तो उसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। Okay, so in this class, I have to define the main method. So write here public static void main string args. I define here main method. In main method, I have to call all the class. ये जो क्लास अब मैं बनाया हूँ तो इसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। तो कॉल करने के लिए पहले मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास नेम इज फर्स्ट I equals to new first. So when I create a object of class, it shows an error that the symbol is not found because this first class is present in other package. ये जो first class जो है वो दूसरा पैकेज में है, जो पैकेज का नाम है P1। तो इसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट, मतलब दूसरा पैकेज को आपको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर, जैसे कि आपका सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल था, यहाँ पर आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा इंपोर्ट P1 डॉट फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर एक क्लास इंपोर्ट किया, इंपोर्ट सर एक P1। बार थोड़ा और समझो सर, इंपोर्ट पार्ट। हाँ, see that when I if I not writing this import statement, मैं अगर ये import statement नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको एक एरर शो करेगा। That is the symbol is not found।
तो आपको दिखाएगा द सिंबल इज नॉट फाउंड। आई मूव द कर्सर फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, बिकॉज सिंबल नॉट फाउंड क्यों दिखाएगा? जो आपका जो फर्स्ट क्लास है वो कौन सा पैकेज में है? वो पैकेज P1 में है। तो P1 पैकेज में आपका फर्स्ट क्लास है। तो अगर आप डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे फर्स्ट आई इक्वल टू न्यू फर्स्ट, देन इट इज शोइंग एन एरर। नाउ उस पैकेज को इंक्लूड करने के लिए आपका प्रोग्राम में यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो इंपोर्ट P1 डॉट फर्स्ट, मतलब P1 में आपका फर्स्ट क्लास है। तो अभी मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा। तो सेम थिंग इज हैपेंड फॉर द सेकेंड क्लास। मैं अगर सेकेंड क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि क्या हो गया सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या क्या होता है, सेकेंड जे इक्वल्स टू न्यू सेकेंड। मैं जब सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पर भी देखो ये एरर आया, सिंबल नॉट फाउंड, कैन नॉट फाइंड ए सिंबल, बिकॉज आपका सेकेंड क्लास कहाँ पर है? पैकेज 2 में है। समझ में है? यस सर, यस सर। तो सो दैट टू इंक्लूड दैट क्लास यू हैव टू कॉल ए पैकेज। तो यहाँ पर फिर से मुझे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, जैसे कि सर सी में हम हेडर फाइल लिखते थे बस वैसे ही। बस यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट P2 डॉट सेकेंड अगर हम बोलते हैं तो देखो यहाँ पर एरर चला तो गया। सेकंड पैकेज को कॉल करेगा। हाँ, सेकेंड पैकेज को भी कॉल कर दिया, उसके अंदर जो क्लास है उसको भी कॉल कर दिया। अभी मैं हाँ सर। आई ऑब्जेक्ट में आई डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद जे ऑब्जेक्ट में मैं एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया, ऑटोमेटिक आ गया। अभी मैं थर्ड जो प्रोग्राम है उसको रन करता हूँ, मेरा आउटपुट आएगा। ये मतलब क्या है? ये दोनों रिमोट लोकेशन में काम किए, एक पुणे में काम किया, सपोज एक बिहार में काम किया, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है वो दिल्ली में बैठा है। तो वो क्या किया ना, सबका प्रोग्राम को इंपोर्ट करके अभी रन करके दिखेगा मेरा काम खत्म हुआ कि नहीं और एप्लीकेशन करेक्ट हुआ कि नहीं। देखो, so it is showing you the output. This is a first class and this is a second class. Okay, so your package is present, your class is present in package 1 and package 2, and now we're calling it. Okay, so when we're calling by using here import statement, import P1 dot first, import P2 dot second, the first I equals to new first, second j equals to new second. Clear? सर जो दोनों पैकेज है, दोनों पैकेज के मतलब कंबाइन करके एक साथ ही आउटपुट दिखाएगा। एक साथ ही आउटपुट दिखाएगा, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट अच्छा, लोकेशन में मतलब काम एक, करो, हाँ सर, कोई एक प्रॉब्लम प्रोजेक्ट नहीं दिया है, है, आप एक जगह सपोज एक प्रोजेक्ट आया है। हाँ हाँ सर, सपोज एक प्रोजेक्ट आया है और 4-5 आदमी को, वर्कर को दिया है, तो सबका पार्ट मिला के वो डायरेक्ट कोड को रन करेगा। yes, that is the thing. सर हम सर हम हमारा पार्ट, सपोज हमारा पैकेज 2 का मेरा पार्ट है, तो सर मैं क्या उसको पहले जावा में रन करके देखूंगा कोडिंग वगैरह सब ठीक है कि नहीं, और उसके बाद वो कोड को लाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। हाँ, आप आपका मॉड्यूल में काम करो, आपका मॉड्यूल काम होने के बाद उसको आप दे दोगे टीम लीडर को। टीम लीडर क्या करेगा, उसका जो मेन फ्रेम प्रोग्राम है उसको उसके अंदर डालकर वो रन करके दिखाएगा आपका नहीं सर, प्रोग्राम। मतलब सोर्स कोड जो था वो तो वहां पर रन किया ना, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके एरर वेरर सब कुछ देख लिया। तो सर वो कोड तो डायरेक्ट इस पे रन नहीं हो पाएगा, तो वो जो कोडिंग का पार्ट है जो यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे, वो पैकेज 2 में पेस्ट करेंगे, हाँ, या फिर डायरेक्ट कॉल होगा? नहीं, अब वो पैकेज में पेस्ट होगा। तो आपका जो कोडिंग है, आप बोलोगे तो मेन मेथड में रन होगा, तो उसके अंदर ही आपको कंपाइलेशन एरर चेक करता है। तो आपका प्रोग्राम में एरर है कि नहीं कैसे आपको पता चलेगा? तो आपको भी एक डॉमी मेथड मिलेगा, तो वहां पर आपका प्रोजेक्ट रन करना है।
तो इफ इट इज वर्किंग करेक्टली और आउटपुट आपको दिखा रहा है, देन वो कोडिंग सोर्स कोड आपको देना है। और आपको जो मॉड्यूल आप अच्छा, बनाए हो वो मॉड्यूल का लिंक दे देना है किसमें, वो टीम लीडर के पास। तो टीम लीडर को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो एक ही प्रोजेक्ट है, उसका मॉड्यूल आपको एक चीज दिया है। ओके, सो ऑल योर सिस्टम आर इंटीग्रेटेड। आप जो भी काम करोगे तो टीम लीडर को पता चलेगा, वो हर वक्त कॉल करता रहेगा और देखेगा आउटपुट क्या है। तो उसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पर एरर है, आपको सजेस्ट करेगा। ओके, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर क्लियर। so this is actually we are working in a remote system। रिमोट सिस्टम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरह से होता है जैसे कि आपका अभी हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। सो एवरी पीपल इज वर्किंग इन दिस बेसिस। तो उनका ईआरपी सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो सारा प्रोजेक्ट डिवाइड हो जाता है एक एक सब मॉड्यूल में। तो जो जिसका मॉड्यूल है वो उसको लेकर डेवलप करता है, तो उसको वो रिमोट लोकेशन में उसको कॉल करके उसको रन करके दिखाएं। ओके, हाँ सर, क्लियर। ओके, सो यू आई हैव टू शेयर दिस कोड। मैं आपको एक कोड शेयर कर दूंगा। ये है आपका पैकेज वन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको सिर्फ रेफरेंस देकर उसको चेक करना है। ये पैकेज वन, okay, तो you see this video and do the practicals of this packaging। okay, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करना, मैं आपको रिमोट लेके इसको देख लूंगा। ओके, यस सर। ओके, चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। मंडे 9 o'clock we meet। ओके, हाँ सर।